ادھر وفا گری تھی، ادھر کال کوٹری میں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا ذریعہ پریشان ہو اٹھا۔ ایک دم عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا، دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، دھک 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 دھک۔ اسے لگ رہا تھا دل سینوں کے دیواروں سے سر پٹک پٹک کر باہر آ جائے گا۔ یا اللہ، میرا دل کیوں اتنا بے چین ہے؟ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب ہم دونوں، وفا اور ذریعہ، میں سے ایک مشکل میں ہوتا ہے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، دل زیادہ بے تاب ہونے لگا تو خدا کے حضور جھک کر اپنی عزیز جان بہن کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وفا کتنی بڑی مشکل میں ہے، مگر اس کا دل اسے اطلاع کر رہا تھا اور وہ اپنی بہن کو خدا کی امان میں دے بیٹھا تھا۔ وہ دو دل ایک جان تھے، اگر چوٹ ایک کو لگتی تھی تو تڑپ دوسرا جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وفا، وفا اٹھو، آنکھیں کھولو، اسفند نے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا۔ اس کا اتنا خون دیکھ کر اسفند کی جان حلق میں آ گئی تھی اور چیخیں تو عشل کی بھی نکل گئی تھیں۔ اسفند، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے، اسپتال لے کر چلو، اس نے اسفند کا کندھا جھنجھوڑ کر کہا، جس کی خود وفا کے ساتھ جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی فوراً وفا کو باہوں میں بھرا۔ سردار مومن خان، اگر وفا کو کچھ بھی ہوا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور اس بار مجھے تمہاری جان لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ یہ کہتا وہ وہاں سے وفا کے لیے لے کر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی عمر، عشل اور شازیہ بیگم بھی نکلی تھیں، کیوں نہ جاتی، بات ان کے وارث کی جو تھی۔ پیچھے مومن خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا تھا، خساروں میں گھرا، سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان کر چکا تھا، اور جو باقی بچے تھے وہ تھے ہی بے زمین لوگ، وفا کے مرنے سے ان کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز افراتفری میں ICU کے اندر باہر جا رہے تھے اور باہر کھڑے اسفند کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ کبھی ادھر ٹہلتا تو کبھی ادھر، عشل اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہی تھی۔ ڈاکٹرز کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ اذانوں کی آواز پر اسفند بے اختیار وہاں سے قریبی مسجد میں گیا، خدا کے آگے جھک گیا اور اس کے سامنے سب دکھ آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے بہا دیے۔ یا اللہ، میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، نہیں جانتا جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، مگر میرے رب مجھے وہ واپس لوٹا دے۔ اس کے نکاح کے بعد کبھی دل میں اس کا خیال نہیں لایا، مگر آج تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، میرے رب، میرے کریم مولا، اپنے حبیب کے صدقے مجھے اس کی زندگی لوٹا دے۔ میں جانتا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، مگر اس کا یہاں فل وقت کوئی نہیں جو اس حق میں دعا کر سکے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، مگر وہ سجدے میں گر رہا۔ فجر کی اذان سے وہ یہاں تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے جب اسے عشل کی کال آئی اور اس نے وفا کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وہ سجدہ شکر بجا لایا اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا جہاں اس کا عشق منتظر تھا۔ ICU میں اس وقت ہولناک سی خاموشی تھی، بیچ بیچ میں بس عشل کی سسکیاں وقفے وقفے سے گونج رہی تھی، جو بے جان سی وفا کے پاس بیٹھی اپنی جان سی پیاری دوست کو یوں سکتے میں دے کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، جو ساکت سی اسٹریچر پر پڑی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں بے تاثر سی دیوار پر گڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے جب انہیں اطلاع دی تھی کہ وہ اس کے بچے کو نہ بچا پائے، تب سے وہ اب تک وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، نہ ہی آنکھوں سے کوئی آنسو نکالا، لبوں پر قفل لگ چکے تھے۔ شہناز بیگم تو اس کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی تھی، وہ عمر کے ساتھ واپسی حویلی روانہ ہو چکی تھی۔ عشل نے لاکھ کوشش کی وہ کچھ بولے یا اپنی اولاد کا کھونے کے غم میں رولے، مگر بے سود۔ وہ وفا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلتا، اسفندیار اندر داخل ہوا، سانسیں پھولی ہوئی تھیں جو اس کے بھاگ کے آنے کی گواہ تھی۔ اس کی بے چین نظریں وفا کا طواف کر رہی تھیں، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد کچھ ہی دیر میں سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، ہاتھوں پر ڈرپ لگی تھی۔ وفا کو ایک طرف مسلسل دیکھا پا کر اس کے ساکت ہونے کا گمان ہوا، اسے ایک دم کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عشل کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس نے اسفندیار کے بدترین خدشات پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ وفا ایک اور ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا اور وفا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وفا، اس نے بہت پیار سے پکارا اسے۔ تیسری دفعہ بھی جب اس نے جواب نہ دیا تو اسفند نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وفا، اس کی آنکھوں میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی، اس نے اسفندیار کی طرف دیکھا، ان آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اسفندیار کے دل پر اس وقت آرے چلے تھے۔ ایک آنسو بے ساختہ پھسلا اور وفا کے چہرے پر گرا، جس نے وفا کے اندر ہلچل پیدا کی اور وہ پلک جھپکتے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ احساسات پر جمی برف پگھلنے لگی تھی، ایک کے بعد ایک آنسو اس کے رخسار بھگوتے چلے گئے۔ اسفندیار کے لمس نے اس کو حال میں لوٹا دیا تھا، وہ پھر ضبط کے سارے بندھن توڑتی اسفندیار کو اپنے نزدیک پا کر اس کے دونوں ہاتھوں پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ عشل اور اسفند جیسے مضبوط مرد کو بھی رلایا تھا۔ اسفند، میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا اب نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں جاؤں، کیسے برداشت کروں؟ یہ دکھ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، لگتا ہے کوئی مجھے آری سے کاٹ رہا ہے، کوئی میرا دل نوچ کر لے گیا ہے۔ یہ
वो तड़पती बिलखती ज़ोरों से तकिए पे सर पटकने लगी। असफन को लगा वफ़ा का दुःख सुनकर इसका दिल फट जाएगा। इसके सीने में एकदम दर्द उठा था। मुझे नहीं जीना और मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, कोई मुझे मेरा बच्चा ला दो। वो चीख रही थी, अपने आप को बुरी तरह नोच रही थी कि वो खुद को ज़ख्मी कर बैठी। ईश्वर और असफन दोनों मिलकर इससे ज़ख्मी माँ का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी मोमिन को, कातिल है वो, मेरी औलाद का सब छीन लिया इसने मुझसे। वो भी तड़पेगा, रोएगा। नर्स ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू करते इसे इंजेक्शन लगाया था और वो ये आखिरी बात कहते ही होश खोती चली गई। मोमिन रात से डेरे पर था, सुबह होने को आई थी, मगर इसके वजूद में हलचल ना हुई। वो जानता था वो अपनी मोहब्बत का कत्ल कर चुका है और ये ज़हर इसे अंदर ही अंदर काट रहा था। वो अंदर हिम्मत जमा करता उठा और उस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ जहाँ इसकी बीवी, इसकी खोई मोहब्बत, रंज व गम की अमली तहरीर बनी हुई थी। वो नहीं जानता था वहाँ जाकर इसे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, मगर वो वफ़ा का हाल भी जानना चाहता था। इसलिए लाख कोशिश के बावजूद खुद को वहाँ जाने से न रोक सका। वार्ड में इस वक्त 4 नफूस थे, इशल, उमर, असफंदिया और वो बेबस वफ़ा, जो अपने अंदर का गुबार निकाल कर अब एक पत्थर की मूरत बनी पड़ी थी। डॉक्टर ने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट को बताया था। इशल पास बैठी इसे सेब छील कर दे रही थी। वहाँ 4 लोगों के होते हुए भी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। जब मोमिन आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और इसे देखकर सबके तासुरात तेज़ी से बदले। वो सर झुकाए वफ़ा के पास खड़ा हो गया था और असफन की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वो सबका लिहाज किए बगैर इस पर चमटा और उसे दीवार के साथ टिकाकर बेदर बेमुक्कों को बरसात करता चला गया। यहाँ तक इसका खून पूरी तरह बहने लगा। वो वफ़ा भी अभी भी चुप थी, जैसे इसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। उमर ने आगे बढ़कर इसे छुड़ाना चाहा तो असफंदिया ने इसे भी पीछे धक्का दे दिया। तुझ जैसा ज़ालिम बाप मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी ही औलाद का कातिल ठहरा तू सांप को भी पीछे छोड़ गया। असफन ने इसके सर में गुलदान की बोतल तोड़ते हुए कहा और मोमिन सर पकड़कर नीचे गिरता चला गया। मेरा बच्चा इसके मुँह से बेसाख्ता निकला। क्या इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था? क्या वो एक कातिल बन चुका था? पछताओं के नाक से इसे ढसने लगे थे। असमन यार को फिर भी चैन ना आया तो इसने ज़मीन पर फेंकते कमीज़ की जेब से अपनी बंदूक निकाली और मोमिन पर तान ली। अपनी औलाद के कातिल को जीने का कोई हक नहीं। असमन यार के कहने पर और मोमिन पर बंदूक तानने पर सबकी चीखें निकली थी। इसने गन लोड की इससे पहले कि वो गन चलाता। वफ़ा के लफ्ज़ों ने इसके हाथों को ज़ंजीर किया था। तुम्हें मेरी कसम असमन यार, गोली मत चलाना। असमन यार ने ज़ब्त से आँखें मींची और तन-फन करता बाहर चला गया। वो भला अपने भाई की बेगुनाही साबित किए बगैर मोमिन को मरने कैसे दे सकती थी? जंग शुरू जिस वजह से हुई थी, ख़त्म इसे ही करनी थी, मगर मोमिन को पछतावे में छोड़कर मोमिन लड़खड़ाकर उठा। तुम जानते हो मोमिन, कि एक बीवी तो शायद अपने शौहर को माफ़ कर दे, मगर एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वफ़ा ने एक दफ़ा भी इसके चेहरे को नहीं देखा था। मोमिन जो इससे माफ़ी मांगने लगा था, इसकी इस बात पर लब भींच कर रह गया। पता है क्या, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत रोई कि मुझसे खुदा ने मेरी औलाद छीन ली, मगर अब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने ठीक ही किया। पता है क्यों? वफ़ा ने इस पर एक बहुत आम सी निगाह डालते कहा। वो भी जवाब सुनने को बेचैन था, साथ इशल और उमर भी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बेटा था, यानी एक लड़का। अगर वो इस दुनिया में आ जाता तो शायद दूसरा मोमिन पैदा होता, इसलिए अल्लाह ने इसे वापस ले लिया ताकि वो दूसरा मोमिन बनकर किसी लड़की की ज़िंदगी ना उजाड़ दे। ये सोचकर मुझे सब्र आ गया। वफ़ा ने अपनी बहती आँखों को एक दफ़ा फिर साफ़ करते हुए कहा और मोमिन ज़िल्लत की इंतहा गहराइयों में उतरता चला गया। अल्फ़ाज़ कहीं खो गए थे। बेटा वो नीचे बैठता, ये अल्फ़ाज़ इसको कोड़े की तरह लगे थे। ये बातें गाली गाली थी इसके लिए। वो फूट-फूट कर रो दिया। इशल, इनसे कहो बाहर जाकर जितना चाहे रोएँ, मगर मेरी नज़रों से दूर हो जाएँ। ये सुनना था कि वो वार्ड से बाहर निकलता चला गया। कुछ दिन बाद वफ़ा वापस हवेली लौट आई थी, जहाँ इसे हर किस्म के ताने सुनने पड़ते। वो सब कुछ ज़ब्त कर रही थी क्योंकि अभी सबूत इनके हाथ नहीं लगा था। आज वो लोग मुंतज़िर थे कि कब काशिफ़ वहाँ जाए तहख़ाने में और अपना गुनाह कबूल करे। आज वफ़ा की तबीयत कुछ गिरी-गिरी सी थी, इसलिए वो कमरे से बाहर ना निकली थी। असफंदियार इशल के काम के सिलसिले में इसे लेकर 2-3 दिन से बाहर था। जब अचानक नीचे शोर उठा, वो नीचे गई तो नीचे का समा ही बदला हुआ था। हवेली पूरी तरह सजी हुई थी और सामने स्टेज पर बैठे बैठे मोमिन और शाज़िया अभी निके से फ़ारिग हुए थे। वो साकित आँखों से इसे देखे गई। जब इस सबकी नज़रें भी वफ़ा पे पड़ी। लो आ गई मनूस नज़र लगाने। नाइला बेगम भड़की, ये मुँह तो बाकी सबका भी बिगड़ा था, तो कर ली तुमने शादी? वफ़ा ने बामुश्किल अपने लफ्ज़ों को ज़बान दी। मेरा ये करना ज़रूरी था क्योंकि मैं सरदार हूँ और मेरी नस्ल मेरी ख़ानदानी बीवी से ही चलनी थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। मोमिन ने नज़र चुराते कहा, और वो कैसे बताता कि साके साहब ने कस्में देकर इससे ये सब करवाया है। मोमिन, तुमने तो अभी अपने बच्चे का कफ़न भी मैले नहीं होने दिया और उसकी मैयत पर अपनी सेज सजा ली। वफ़ा की आंखें बेसाख्ता आंसुओं से झिलमिलाई थी। मैं भी आखिर किससे कह रही हूँ, एक बेवफा और कातिल, भला मेरी बात का मतलब कैसे समझेगा? इसने कहते हुए सर झटका।
जानते हो ये आखिरी उम्मीद थी जो मेरी तुमसे बंधी थी। अच्छा किया जो तुमने ये भी तोड़ दी, क्योंकि अब जो मैं करूँगी इसका मुझे ज़रा भी मलाल नहीं होगा। इसकी आँखों में इसकी मोहब्बत की कब्र आसानी से देखी जा सकती थी। मोमिन ने पूछना चाहा कि वो क्या करने का इरादा रखती है, मगर इससे पहले ही वफ़ा शाज़िया की तरफ मुड़ गई। तुम्हें क्या लगता है तुमने इसे पा लिया, अब हुकूमत तुम्हारी होगी? हाँ, 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 वफ़ा ने तंज़िया कहते आखिर में खोखला सा कहकमा लगाया। जो अपनी मोहब्बत का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा, जो अपनी मोहब्बत को इज़्ज़त ना दे सका, तुम्हारा हाल तो इससे भी बदतर करेगा। मगर कोई बात नहीं, तुम दोनों एक-दूसरे को ही डिज़र्व करते हो। वफ़ा ने तनफ़र से कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? शाज़िया दबे-दबे से चिल्लाई। इसकी बात पे वफ़ा तमस्कराना सा मुस्कुराई और बोली, एक चाल तुमने चली मेरा बच्चा मुझसे छीन कर, एक मैं चलूँगी, मगर अभी नहीं, बहुत जल्द। ये कहते ही वो अपने कमरे में चली गई। इससे ज़्यादा इसकी ताकत नहीं थी। मोमिन की शादी एक अज़ाब लग रही थी, घुटन हो रही थी। इसलिए इसलिए वो आज की रात डेरे पे चला गया। सभी इसे रोकते रह गए, मगर वो ना रुका। ये शाज़िया के लिए शिकस्त से फ़ाश थी। रात का पहर था, हवेली के बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे में एक साया दबे कदमों एतराफ़ का जायज़ा लेते हुए मोमिन के कमरे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और शाज़िया ने इसे अंदर खींच लिया। कहाँ थे तुम? जान मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में तड़प रही थी। शाज़िया ने बेबाकी से कहा, अब तो आ गया हो ना स्वीटहार्ट, चलो अपनी गोल्डन नाइट स्पेंड करते हैं। इसने ख़बासत से कहते इसकी बाहों में उठाते दरवाज़ा बंद किया था। कोई था जो ये सब देख रहा था और वहाँ से खामोशी की चादर उड़े हट गया। वो शिकस्ता कदमों से कमरे में वापस आई थी और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ टेक लगाकर नीचे बैठती चली गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त ज़ब्त की कौन सी इंतहा पर थी, मगर इसकी बस हो चुकी थी। ये तो वो मोमिन था ही नहीं जिससे इसने मोहब्बत की थी, ये तो कोई और ही संगदिल हरजाई था जिसे वफ़ा को दुख देकर खुशी मिलती थी। वो आज जी भर कर रोई थी। मोमिन ने इसके साथ क्या क्या ना किया था। पहले इसके ऊपर ज़ुल्म सितम की इंतहा कर दी, फिर इसके किरदार को निशाना बनाया जो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। इसकी औलाद की जान ले ली, अब इसकी दूसरी शादी ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतारिफ काम किया था। इसका ये कारीवार इसके सबसे पिछले ज़ख्मों को हरा कर गया था। वो आज फूट-फूट कर रोई थी ताकि वो आइंदा किसी भी मिलने वाले ज़ख्म पर आँसू ना बहा सके और इतनी मज़बूत बन जाए कि इसे कोई तोड़ ना सके, बल्कि वो दूसरों को तोड़ कर रख दे। आज रात इसकी आँखों से सारे आँसू बह निकले थे और जो बचा था वो सुलगता हुआ इंतकाम था। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोमिन, आखिर किस-किस चीज़ का बदला चुकाओगे? बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने, बहुत सह लिया मैंने। अब तक तुमने अपने प्यार में डूबी गुलरख देखी थी, मगर अब तुम वो वफ़ा देखोगे जो दुश्मनों के हाथ लगाए बगैर खाल उधेड़ देती है। वो अपने आँसू हाथ साफ करती एक अज़म से उठी। अब वो तैयार थी दुश्मनों को हराने के लिए, इनके पाँव तले से ज़मीन खींचने के लिए, और ये बिसात मोमिन को किस दोराहे पे लाने वाली थी, ये तो वक़्त ही बताने वाला था कि वो किस तरह ऊँचाई से मुँह के बल गिरने वाला था। ऐश खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर हवेली के बागीचे में आई थी। मोमिन और शाजिया की शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इसे आज भी याद था जब वो और असफन वापस आए थे तो उन्होंने इनकी शादी का जानकर कितना वलवला किया था। अब तो इशल में भी नहीं चाहती थी कि वफ़ा एक पल भी मोमिन के साथ रहे। इन सबको इंतज़ार था तो बस अगले मुहरे का। वो इन्हीं सोचों में खोई हुई थी जब उमर ने गला खंगार कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, इसने बहुत लहक के शेर पढ़ा था, और कई लोगों के चित्रों के आसार नज़र आते हैं। ऐश ने भी इसके कांच के फूल को पत्थर दे मारा था कि वो बिलबिला उठा। मोहतरमा ये देखिए, अब आप हमसे बदतमीज़ी से पेश आ रही हैं। हमने तो शेर वैसे ही कहा था, कौन सा आपको कहा जो आपने हमें ये कह डाला। हम भी हवा से बातें कर रहे थे, हमने कहा आपको कहा जो आप यूँ दिल पर ले बैठे हैं। इशल ने भी इसकी दो बदू जवाब दिया। कुछ भी था इशल, अब इसकी मस्खरियाँ पसंद आने लगी थी। उमर जब भी इशल के पास होता है इसके लबों पे मुस्कुराहट रहती थी। वैसे एक बात कहनी है आपसे, उमर ने शरीर लहजे में पूछा। वो जान गई थी कि अब वो कोई मसखरी छोड़ने वाला है। अहम मोहतरमा मारिएगा मत, वो हमने पूछना था कि क्या आप हमारे मुस्तकबिल के बच्चों की माँ बनना पसंद करेंगी? वो ये कहते हुए तेज़ी से पीछे हुआ, कहीं वो कोई गमला उठाकर ही ना मारे। वो जो इसकी बात गौर से सुन रही थी, इसकी बात का मैंने मफ़हूम समझकर कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई और अपनी हया छुपाने के लिए दरदर कोई चीज़ इसे मारने के लिए ढूँढने लगी, जिसे देखकर वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ और उसके जाते ही मुँह हाथों पे छिपाकर शर्मा दी। वो पूछना ये था कि मैं हाँ समझी, वो फिर छलावे की तरह नमूदार हुआ, जिस पर बेसाख्ता डर कर इसका दिल उछल कर हलक में आ गया और वो तैयारी में से एक पत्थर उठाए इसके पीछे भागी थी, यहाँ तक कि वो हवेली के अंदर पहुँच गए। अब कि वो गया तो इशल की नज़र वफ़ा पे पड़ी, जो गहरी नज़रों से इसे देख रही थी जैसे इसके अंदर का हाल जान लेना चाहती हो। ऐसे क्या देख रही हो वफ़ा? इसने बाल कान के पीछे अड़सते अपने आप को कंपोज़ करने की नाकाम सी कोशिश की थी। यही कि मेरी दोस्त इतनी समझदार कब से हो गई कि अपनी मोहब्बत मुझसे छुपाने लगी।
वफ़ा ने संजीदगी से कहा तो उसकी जान पर बनी। वफ़ा ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस हम दोस्त हैं। ईशल ने नज़र चुराते कहा तो वफ़ा की कोशिश पर मुस्कुरा दी। वो आगे ईशल के करीब आई और उसके दोनों बाजू से थाम कर बोली, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं समझ पाऊँगी कि उमर और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? तुम शायद नहीं जानती, लेकिन मैं बता दूँ, अब मैं पहली जैसी वफ़ा नहीं रही जो बात के सामने होते भी अनजान रहूँ। इस हवेली में आने के बाद से तो मैं लोगों के दिल की बात तक जान लेती हूँ। तुम तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, भला तुम्हारे दिल की बात कैसे जान रहती। इसने चेहरा हाथों में थामते कहा, और रही बात मेरी, तो तुम मेरी वजह से अपनी मोहब्बत मत छोड़ो ईशल। सच्ची मोहब्बत पाना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, जिधर हर कोई चेहरे पर निकाब ओढ़े घूमता है। उमर सच में तुमसे मोहब्बत करता है, मैं तो खुद गवाह हूँ इसकी। वो इस हवेली के मर्दों जैसा नहीं, बल्कि असवन की तरह ही एहसास है। तुम यकीनन खुश रहोगी, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपनी मोहब्बत पालो। आखिर किसी को तो इसकी मोहब्बत मिले, मेरी छोड़ो। इसने बुझे दिल से कहा, और जब तक असवन मेरे साथ है बेफ़िक्र हो जाओ, वो सब ठीक कर देगा। वफ़ा ने बड़ी बहनों की तरह से समझाते कहा तो वो नम आँखों से इसके गले लग गई। वो वफ़ा के लिए खुश थी कि अब वो मोमिन की छोटी झूठी मोहब्बत भूल गई थी। अब इसकी बातों पे भी असवन का ज़िक्र शामिल होने लगा था। आखिर वो रात आ ही गई थी जब शैतान सिर्फ कासिम आज फिर तहखाने में आया था इस लड़की को जिस्मानी अजियत देने को, क्योंकि आजकल ऐसे कोई लड़की जो मुयस्सर नहीं थी। और ऊपर से ज़रियाब केस की कल हेयरिंग थी, जिसकी वजह से वो ज़रा डिप्रेस था। तभी अपनी हविस बुझाने वो आज फिर इस मासूम जान पर जुल्म करने आया था, इस बात से अनजान कि वो आज यहाँ आकर खुद अपने लिए गड़ा खोद चुका है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अंदर बैठे वजूद की आंखें पट से खुली थीं। वो जानती थी कि आज इसे क्या करना है। तभी जब कासिम इसके कपड़े सरकाने लगा तो इसने बोलना शुरू किया, आज आपको बाहर किसी ने मुंह नहीं मारने दिया जो मेरी याद आ गई। इससे तंजिया लहजे में कहा तो वो हंसा, हाँ मेरी रानी, वो क्या है ना, तू है ही इतनी खूबसूरत कि अब तुझसे दिल नहीं भरा। कासिम ने खबासत से कहा, हूँ आपकी औकात इतनी है कि हवेली की नौकरानी के साथ रात गुजारें। इसे कासिम को गुस्सा दिलाना चाहा। अरे औकात की बात तो मत कर ही जाने मन, जब मैंने इस हवेली की बेटी को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज़ है। इसलिए इस पर अपनी हैसियत वाज़े करनी चाहिए। अच्छा ऐसा भी क्या कर दिया आपने, और हवेली की कोई बेटी इतनी पागल नहीं कि आपकी जंगल में फंस जाए। इसलिए तमस्कराना अंदाज में कहा तो कासिम ने गुस्से से इस कंधे से कमीज हटाते वहाँ दांत गाड़े। तू जानती नहीं अभी डार्लिंग, कासिम किस बला का नाम है, यूँ चुटकियों पर नचाया मैंने इस उजाला को ज़रिया बनकर। वो मक्खन की तरह फिसलती हुई मेरे हाथ में आ गई। इसने अपनी अयारी वाज़े की, पहले इसे ज़रिया बनकर फ़ोन पर राब्ते किए, फिर इसे अपने जाल में फंसाया और मोमिन के डेरे पर बुलाया। वो बेचारी मुझे ज़रिया समझ के अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगाए डेरे पर पहुँच गई। इसे राल टपकाते कहा, फिर क्या किया तुमने? इस लड़की ने हैरत से पूछा। फिर इसकी आंखों में इस वाक्य को सोचकर शैतानियत भरी चमक उभरी। फिर मैंने इसे कमरे में ले जाकर इसकी नाम नेहात इज्जत को तार-तार कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मुझे तो अपनी हवस यानी इसकी जिस्म की तलब थी, तो मैंने वही किया। इसे जगह-जगह से नोचा, इसकी रूह में उतर गया, और वो बेचारी चीखती-चिल्लाती अपनी लूटी इज्जत के वास्ते देती रह गई। हा हा हा। अपने राज से और पर्दाफाश करते इसने बेकहम कहकमा लगाया था, और बाहर खड़ा शख्स आंखों में खून लिए अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जब इसके साथी ने ऐसा करने से रोका और उसे हाथ पकड़ लिए। लेकिन फिर सब ज़रिया को कातिल क्यों समझते हैं? इस लड़की ने इसे पहली की आखिरी कड़ी भी पूछ डाली, जिस पर वो मुकर्रा शख्स अयारी से मुस्कुराया। जब मैंने इससे बेबस कठपुतली की इज्जत लूटी तो ज़रिया कॉल करके वहाँ वहाँ बुला चुका था, क्योंकि मेरा अगला हदफ इसकी बहन वफ़ा थी, जिसका नोखे सरापा मेरी आंखों में बस गया था। तभी इसके मुहाफ़िज़ को राह से हटाने के लिए इल्ज़ाम ज़रियाब पे लगा दिया, और वो बेचारा जो उजाला को बचाने आया था, मेरे कहने पर उजाला ने आखिरी सांसों में ज़रियाब को मुजरिम करार दे दिया अपनी लूटी हुई इज़्ज़त बचाने के लिए, ताकि मैं इसकी अरियां तस्वीरें नेट पर ना डाल दूँ। तो वैसे कमाल की साली, इसने बेशर्मी से कहते उजाला का जिस्म याद करते गाली बकी। और वो घामड़ मोमिन भी मेरी बातों में आकर ज़रियाब को अपनी बहन की इज़्ज़त का लुटेरा समझ बैठा और उसे हवालात में बंद करवा डाला। इसने अपनी सारी गुनाह की पोटली आज इस लड़की पे वाज़ेह कर दी थी, और अपने काम में मगन हो गया जिसके लिए वो यहाँ आया था। और इस राज की सारी पहलें सुलझ गई थी। बाहर खड़े लोग सबूत समेत वहाँ से जा चुके थे, और वो अंधा ज़ालिम की कैद में फंसी लड़की आज शायद आखिरी बार अज़ियत सह रही थी, क्योंकि अब इस फ़िरौन को कोई नहीं बचा सकता था। सुबह का सूरज नई उमंगें लेकर तुलू हुआ था। शाह हवेली के सारे मर्द हज़रात कोर्ट में जमा थे। असफन दरियाब की तरफ से जाना चाहता था, लेकिन वफ़ा ने इसे मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी पेशी तक किसी को भी असफन पर शक हो। तभी इसके तरले मिन्नतें करते इसे मोमिन की तरफ से भेजा। कमरा अदालत पर हो चुका था, जज साहब भी आ चुके थे। ज़रियाब को कटहरे में पेश किया गया। वफ़ा और ईशल कमरे में साथ बैठी असफन के साथ वीडियो कॉल पर मौजूद थी।
ज़रियाब को देखकर वफ़ा की आँखें नम हुई थी। ज़रियाब का वकील असफंद का दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा था, जबकि इसका साथी वकील भी परेशान खड़ा था। जब कोई कमरा अदालत में इत्तला लेकर आया कि ज़रियाब के वकील का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है। मोमिन और साकिब साहब के लबों पे बेसाख्ता तमस्कराना मुस्कुराहट आई थी और असफंद इनको देखकर समझ गया था कि यहाँ भी वो बाजी ले गए थे। असफंद गुस्से से मुठ्ठियाँ बिछकर रह गया। वफ़ा और ईशल का डर के मारे दिल हलक में आ गया था। ताहिर साहब आज यूँ फिर अपनी औलाद को बेबस देखकर आंसू न रोक सके। असफंद किसी भी तरह एक ब्रेक लो। वफ़ा ने फौरी तौर पर असफंद को कहा और कॉल काट कर वजीफ़ा करने लगी मुँह में। दूसरी तरफ असफंद के वकील ने जसास से ब्रेक की दरख्वास्त की। सभी जानते थे ज़रिया आपके वकील की ये कोशिश बेकार थी, क्योंकि अब उनको कोई लॉयर नहीं मिलने वाला था जो इनका केस लड़ता। 45 मिनट का वक़्फ़ा गुज़र चुका था। सब अपनी जगहों पर वापस पुरजमान हो गए थे, मगर ज़रियाब के वकील को आना था, ना वो आया। असफंद का दिल दुःख से भर गया था। एक दफ़ा फिर बुराई की जीत हो रही थी। माय लॉर्ड, और इंतज़ार करके इस केस को लटकाना वक़्त का ज़िया है। मेरी दरख्वास्त है कि मुलज़िम ज़रियाब को सज़ाए मौत दी जाए। ज़रियाब ने आँखें बंद करके खुद को एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा सहने के लिए तैयार किया। जज साहब भी इंतज़ार से तंग आ गए थे। तभी फ़ैसला लेते हुए बोले, आप लोगों ने कोर्ट का वक़्त ज़ाया किया। आपके पास मुलज़िम को बचाने के लिए कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। अदालत में सब दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रिया बिन ताहिर को फांसी। रुकिए माय लॉर्ड, मैं हूँ लायर, मेरे बगैर मेरे मौक़िल को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत के दरवाज़े से ज़रियाब के वकील ने कदम अंदर रखते हुए कहा, और ज़रियाब के वकील को देखते न सिर्फ खान हवेली के अफराद समेत मोमिन पर बिजली गिरी थी, बल्कि असफंद और ज़रियाब की आँखें फटी की फटी रह गईं। रुकिए माय लॉर्ड, मैं हूँ लायर, मेरे बगैर मेरे मौक़िल को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत के दरवाजे से ज़रियाब के वकील ने कदम अंदर रखते हुए कहा, और ज़रियाब के वकील को देखते न सिर्फ खान हवेली के अफराद समेत मोमिन पर बिजली गिरी थी, बल्कि असफंद और ज़रियाब की आँखें फटी की फटी रह गईं। सफ़ेद उजली शलवार कमीज़ में ऊपर जैकेट, ब्लैक कोट पहने, सर पर सफ़ेद दुपट्टा टिकाए, मुँह मज़बूत कदम रखती हुई अंदर दाखिल हुई। इसकी बात ने वहाँ खड़े सब लोगों को साकित कर दिया था। असफंद इसे इस मुकाम पर देखे बहुत खुश हुआ। इसे तो याद ही नहीं रहा था कि वफ़ा भी लॉयर की डिग्री कंप्लीट कर आई थी। ज़रिया भी आँखों में नमी और खुशी के जुगनू लिए अपनी बहन को यूँ कामयाब और मज़बूत बना देखा रहा था। इस बात से अनजान के इस मुकाम पर पहुँचने तक इसने ज़िंदगी के कई ख़ास लोगों और रिश्तों को खो दिया था। और सब खान हवेली के मर्द हज़रात गुस्से से अपनी जगह से उठे, जबकि मोमिन का बस नहीं चल रहा था कि वफ़ा को क्या से क्या कर दे। वफ़ा ने सबको जलती मुस्कुराहट के साथ देखा, जिससे सब जल भुन गए थे। इसके यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वफ़ा की जलती मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। मोमिन तन-फन करता इसके पास और धाड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घर की औरत कभी कोर्ट नहीं आई, निकलो यहाँ से अभी। इसने वफ़ा के बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते कहा। वफ़ा को लगा इसका बाजू टूट जाएगा। मिस्टर मोमिन खान, आप मेरे शौहर सिर्फ घर तक हैं। यहाँ कोर्ट में आप मेरे मुखालिफ पार्टी से हैं, जिससे मेरे मौक़िल पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, तो ऐसी फ़िज़ूल बातें करके आप सिर्फ मेरा और कोर्ट का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। इसने एक-एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया और झटके से इसका बाजू अलग किया। मोमिन तो इसकी जुर्रत पर दंग रह गया था। तुम ये अच्छा नहीं। इससे पहले कि वो इसे सख्त और सुनाता, जज साहब ने इसे टोक दिया। ऑर्डर, ऑर्डर जनाब, आप अपनी जगह पर बैठिए और अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। इससे पहले मोमिन को बैठने और वफ़ा को केस लड़ने का कहा। खान हवेली के सारे मर्द वफ़ा को खून आशेम नज़रों से देख रहे थे, सिवाय उमर और असफंद को, जो वफ़ा को यहाँ देखकर खुश थे। लेट द गेम बिगिन्स, असफंद ने मुस्कुराती आंखों से वफ़ा को देखते दिल में कहा। आप मोहतरमा, इससे पहले कि मोमिन का वकील वफ़ा को कुछ कहता है, वफ़ा ने बीच में से टोक दिया। मोहतरमा, वफ़ा खान नाम है मेरा। इसने वकील को अपने नाम से आगाह किया और मोमिन इसके अपने अधूरे हवाले पर बमुश्किल खुद को कंट्रोल किए बैठा था। वफ़ा ने मोमिन के नाम का हवाला ही अपने नाम के साथ से हटा दिया था। तो मोहतरमा, केस साफ़ है, ज़रियाब खान मुजरिम है, आप सिर्फ इस मुलज़िम को बचाना चाह रही हैं। इस वकील ने वफ़ा पर तंज़ करते कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जज साहब, जिस वक़्त उजाला की इज़्ज़त लूटी गई, तो मेरे मुवक्किल इस वक़्त अपने घर में अपने शरीके हयात के साथ मौजूद थे, जिसको साबित करने के लिए मैं इनकी बीवी सहर साहिबा को कटहरे में बुलाना चाहूँगी। इसने सहर को बुलाया। सब सहर को अदालत में देखकर एक बार फिर हैरान हुए। आप बताना पसंद करेंगी इस रात क्या हुआ था? वफ़ा ने सहर से इस रात के बाद पूछी। जी, इस रात मैं और मेरे शौहर सोए हुए थे, जब एक फ़ोन कॉल के आने पर वो चले गए। फ़ोन सुनकर वो बहुत परेशान हो गए थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे आकर बताएँगे। सहर ने हर एक बात हुर्फ़ ब-हुर्फ़ बताई। ठीक से याद करके बताएँ, क्या वक़्त हुआ था तब? वफ़ा ने इसकी तरफ देखकर पूछा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2:45 का वक़्त था।
गौर कीजिए जज साहब, बार-बार ये सुनने को मिल रहा है कि 2:45 का वक़्त था, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट से साफ साबित होता है कि उजाला से ज़्यादती 2 बजे की गई थी। ये उजाला की मेडिकल रिपोर्ट और ज़रियाब खान के फ़ोन कॉल की हिस्ट्री है कि वो फ़ोन कॉल कब आई, और ये इनके घर की सीसीटीवी की वो रात 2:50 पर घर से निकले, यानी फ़ोन कॉल सुनने के ठीक 5 मिनट बाद। वफ़ा ने सारे सबूत जज साहब को पकड़ाए, जो चश्मा दुरुस्त करते सबूत मुलाहिज़ा करने लगे और फिर पेन से पेपर पर पॉइंट नोट करते गए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब ने मोमिन के वकील से दरियाफ़्त किया, जो अभी तक से सबूतों को देख रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खेल यूँ पलट जाएगा। मेरे ख़्याल में मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील को इस वक़्त पानी की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है जज साहब। वफ़ा ने अपने मुख़ालिफ़ वकील पर तंज़ करते कहा तो असफन सर नीचे करके अपनी हँसी दबाने लगा, क्योंकि अब वो जानता था वफ़ा का डेविल मूड अब ऑन हो चुका था। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। मोमिन हाथ की बीठियाँ बेचकर अपने इस्ताल को काबू करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की क्या कह रही है मोमिन? साकिब साहब ने मोमिन को गुस्से से कहने लगे। जज साहब, ये सिर्फ़ असल मुजरिम को छुपाकर मेरे बेकसूर मौक्किल को जानकर सोची समझी साजिश में फँसा रहे हैं। वफ़ा ने इन सबको एक नज़र नफ़रत से देखते हुए कहा। ज़रिया बस खामोशी से वफ़ा की कार्रवाई देख रहा था। वो तो बस अपने लख़्त जिगर को अपने गले से लगाकर सुकून महसूस करना चाहता था। मोहतरमा, अगर ये कातिल नहीं तो फिर कौन है? इस वकील ने भी वफ़ा को आड़ो हाथ लेना चाहा। अगर साबित ये नहीं हुआ कि ये बेकसूर है, तो साबित ये भी नहीं हुआ कि ज़रिया ही कातिल है। वफ़ा ने एक-एक लफ्ज़ चबाते कहा। मोमिन साहब ने खुद देखा है। इस वकील ने दलील दी। गलत, बिल्कुल गलत। मोमिन साहब तब वहाँ पहुँचे जब वारदात हो चुकी थी। ये उन्होंने कब देखा कि ज़रिया ने ही ज़्यादती की? देखा नहीं। नहीं, नहीं, नहीं ना, तो फिर ये गवाही भी वैलिड नहीं। वफ़ा ने आई उबरूज खाते हुए कहा। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। किसी को उम्मीद न थी कि केस इतना पेचीदा होगा जितना वफ़ा ने इसको बना दिया था। कासिम कासिम के पसीने छूट रहे थे। अब तो वो अदालत से उठकर बाहर भी नहीं जा सकता था, कहीं शक इस पर ना आ जाए। बहुत हो गई बकवास, ज़रियाब ही मुजरिम है, तुम इसे बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। मोमिन अपनी जगह से उठता हुआ चीखा। ऑर्डर, ऑर्डर, खामोश होकर बैठिए वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज साहब ने मोमिन को घूरते हुए कहा। जज साहब, मोहतरमा वफ़ा खान मुजरिम ज़रियाब खान की बहन है, तभी इन्हें बेकसूर साबित करना चाहती हैं। अपनी ज़ाती रिश्ते के लिए किसी दूसरी औरत को इंसाफ मिलने से रोक रही हैं। मुकाबिल वकील ने इस पर तंज़ करते कहा तो कमरा अदालत में एकदम खामोशी छा गई। जी जज जज साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं ज़रियाब खान की बहन हूँ, लेकिन अगर ज़रियाब खान वाक़ई मुजरिम होते तो मैं खुद इन्हें सज़ा दिलवाती और उजाला को इंसाफ। मगर यहाँ तो मुजरिम को ही सिरे से छुपाया जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि करे कोई और भरे कोई। वफ़ा ने मुजम्मा को देखते हुए कहा तो कासिम को साँप सूख गया था। क्या वफ़ा जानती थी कि उजाला से ज़्यादती इसने की है? मगर कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता था। ज़रूर ये लड़की इन सबको फँसाना चाह रही थी। जज साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रिया को उजाला कत्ल केस में फांसी की सज़ा दी जाए और अदालत का वक़्त ज़ाया होने से बचाया जाए। जज साहब ने इनके कहे पर गौर किया और वफ़ा को देखा। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जज साहब, मैं ये कहना चाहूँगी, जब उन्होंने ज़रियाब की सज़ा मुझसे ले ली है तो फिर किस बात की फांसी? वफ़ा ने तंज़िया नज़रों से सबको देखते कहा तो जज साहब उलझे। क्या मतलब? मतलब ये कि जज साहब, अगर ज़रियाब कातिल था, ज़ानी था, तो वो ज़रियाब को सीधा जेल में ही क्यों नहीं पटक दिए? उन्होंने विनी की कभी रस्म पर अमल करते हुए एक और बेकसूर को कत्ल किए की सज़ा क्यों दी? जवाब है कोई आपके पास? नहीं ना। जज साहब हैरत से मुँह खोले देख रहे थे। अगर सज़ावार ज़रियाब है तो ये सब हवेली के मर्द हज़रात भी हैं, इन्हें भी सज़ा दी जाए। वफ़ा के कहने पर सब मर्द हज़रात गड़बड़ा गए। जज साहब, मेरी साथी वकील केस को किसी और जानिब लेकर जा रही हैं। वकील ने इसे बीच में टोका। केस को तो अपने आप तक घुमाया है सही राह में, तो अब मैं लेकर जा रही हूँ। मगर अफ़सोस आपको पतंगे लग गए हैं। इसकी इतनी साफ बेइज़्ज़ती पर वो तलमिला कर रह गए। जज साहब, मैं मोमिन खान को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है? मोमिन के वकील ने इजाज़त माँगी। इजाज़त है। तो मोमिन साहब, जब आप वहाँ पहुँचे तो समा कैसा था? इसके वकील साहब ने पूछा तो इसने इस रात का मंज़र वाज़ेह किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज़रियाब उजाला पर झुका हुआ था। इसने इतना बोला था कि इसकी नसें फटने लगी थी अपनी बहन का ज़िक्र करते। उजाले ने ज़रियाब का गिरबान दबोच रखा था और जब मैंने उजाला से पूछा तो उसने ज़रियाब की तरफ इशारा करते कहा, ये सब इसने किया। क्या आपने ज़रियाब को कोई नाज़ीबा हरकत करते देखा? वफ़ा ने पूछा। नहीं, मगर वो इसके ऊपर आपने देखा या नहीं? हाँ या नहीं? वफ़ा ने इसे बीच में टोकते कहा। नहीं। इसने लब खींचते कहा। वेरी गुड। तो आपको कैसे पता है कि ज़रियाब ही मुजरिम है? ये भी तो हो सकता है उजाला ने झूठ बोला हो। वफ़ा ने इसे तेज़ नज़रों से देखते हुए कहा। शट अप जज, शट अप। अब एक लफ्ज़ भी बोला तो ज़बान खींच लूँगा।
मोमिन दहाड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ ज़रिया से पहले उजाला के साथ कोई और हो और इसने ज़रिया पे इल्ज़ाम लगा दिया। वफ़ा बिना रुके बोलती चली गई। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, मोमिन चीखा। या ऐसा भी तो हो सकता है उजाला ने इसे फँसाया हो। वफ़ा के कहने पर अब मोमिन का इसका गला पकड़कर दबाने लगा। वफ़ा का दम घुटने लगा था। इसलिए कहते हैं मोमिन साहब, इज़्ज़त को अदालत में लाओगे तो पगड़ी तो पैरों में गिरेगी। इसने घुटती साँसों के बीच सुर्ख़ होते हुए मुँह से कहा। हवलदारों ने फ़ौरन वफ़ा को इससे छुड़ाया था और एकदम खाँसने लगी। ऑर्डर ऑर्डर, आपको वकील पर हमला करने की सूरत अंदर किया जा सकता है। सो बिहेवियर। जज साहब गुस्से से गिरचे। जज साहब, वकील साहबा मेरी मरहुमा उजाला बेगम पर कीचड़ उछाल रही हैं। इसके लिए इन्हें सख्ती से वार्न किया जाए और केस लटकाने की बजाय मुजरिम को सज़ा दी जाए। मोमिन का वकील अपनी जगह से उठते हुए फ़ौरन मामले में कूदा, क्योंकि मामला गंभीर हो चुका था। वफ़ा साहबा, मरहुमा पर कोई इल्ज़ाम न लगाया जाए। जज साहब ने तंबीह की। कौन सी मरहुमा जज साहब, जो मरी ही नहीं कभी, जो आज भी जिंदा है, जिन्हें सबकी नज़रों से छुपा कर रखा गया है। वफ़ा ने अपने सुर्ख गले पर हाथ रखते एक एक लफ्ज़ छपाते हुए मोमिन को तपिश भरी नज़रों से देखते कहा। इसकी गर्दन पर मोमिन की उंगलियों के निशान छप चुके थे और इसकी बात पर कमरे अदालत में मौत का सन्नाटा छा गया था और मोमिन की हालत तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाली थी।